Namaste and welcome to this video podcast during the World Investor Week, where your host Rishi Nathani, Chief Business Officer MCX, is having a conversation with Mr. Narinder Wadhwa, President, Commodity Participant Association of India, and we will talk about various issues regarding the commodity markets and for investor awareness in general. The theme, Wadhwaji, let me start with this theme, which is a very relevant and precise theme for today's time and age, which is a smart investor does not act on unsolicited investment offers. Now, what as a nodal body of commodity market participants and brokers, what is the message you would like to give people based on this theme? Thank you, Rishiji, and thanks for engaging with me, especially in this particular week of World Investor Week. I congratulate IOSCO and SEBI for conducting this week every year in the month of October. And the message is for all MIs, all associations, that we should go to the market, go to the investor, all the user of these markets, and educate them for a financial inclusion also, and tell them do's and do nots. As you say, what is important in current scenario, definitely, I would say that this is an important aspect. SEBI has also taken it, and we are quite active in this also, to tell everyone in the ecosystem that they should not act on the unsolicited advice. SEBI is definitely after it, that there are influencers in the market who influence the trades of the clients and trades of the other stakeholders. We have to ensure that enough education is imparted by us, you and us, and to our members, जिनको हम बताएं कि ये वाली जो नॉलेज है, इसको जो अनसॉलिसिटेड एडवाइस हैं, इसको हमारे को कैसे नकारना है, यूज नहीं करना, और अपनी स्टडी करनी है, अपने आप पढ़ना है. Enough material is there on your website. We also do programs with you on our own also to propagate that, कि आप पढ़ो, बहुत मटेरियल है पढ़ने को, और देख कर काम करें. नहीं, बहुत सही कहा आपने. एंड फैक्ट इज दैट पहले हम तो डब्बा ट्रेडिंग से ग्रसित थे, बट अभी एक जो नया वेव आया है ऑनलाइन, कोई भी आदमी एडवाइजर बन जाता है, एंड देन दे शो सर्टेन प्रॉफिट्स which are maybe doctored, who knows, and lure investors into trading on their advice for some hefty fees or whatever. तो देखिए क्या होता है कि कोई पेड़ रातों रात उग के फल नहीं देता है. वैसे ही कोई हॉट टिप्स रूमर्स पे नहीं जाना चाहिए, अनसोलिसिटेड इन्वेस्टमेंट ऑफर्स पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी, देयर इज नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड. कोई भी कुछ कर रहा है तो कुछ उसका वेस्टेड इंटरेस्ट जरूर होगा उसके पीछे. तो अगर आपको करना ही है तो फीस दे के कोई सेबी रजिस्टर्ड इंटरमीडियरी के थ्रू जाएं, जैसे सीपीआई के मेंबर्स हैं जो रजिस्टर्ड ब्रोकर्स हैं. जो भी सुन रहे हैं उनके लिए बता रहा हूं कि वो रजिस्टर्ड ब्रोकर्स हैं सेबी के अंडर, उनके अंडर रिसर्च एनालिस्ट्स हैं जो भी सेबी रजिस्टर्ड होते हैं, और उसके अलावा एक ब्रीड होती है जो रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स होते हैं, तो वो भी सेबी के अंडर रहते हैं. तो इन सब रजिस्टर्ड इंटरमीडियरीज के थ्रू आप एडवाइस लें, या फिर अपना खुद का रिसर्च करें. जैसे वधवा जी ने कहा, अगर आप में क्षमता है तो बहुत सारे रिसोर्सेज हैं ऑनलाइन जो आप रिसर्च करके कमोडिटी मार्केट्स के बारे में भी जान सकते हैं, बाकी फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए भी जान सकते हैं, और अपना निवेश खुद कर सकते हैं. अदरवाइज यू गो थ्रू, if you don't have the time or the capability or the experience to do this research on your own, then it is better to trust experts who are registered by the regulator SEBI. So coming to the next point, Vadhvaji, is that when an investor thinks about markets, normally they just think about, say, equity markets. But there are so many other asset classes. So generically, as I would know, and maybe correct me if I'm wrong, generically asset classes होते हैं अपने, equities हो गए, fixed income instruments हो गए, रियल एस्टेट हो गया, एक इंश्योरेंस भी इंडिया में एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे बेचा जाता है जो नॉर्मली होना नहीं चाहिए, इट शुड बी फॉर प्रोटेक्शन, बट ठीक है, अभी चलन चलता है, लोग कर रहे हैं. अभी आई एम नॉट गोइंग इनटू वेदर इट्स राइट और रॉन्ग. एंड देयर इज आल्सो अ वेरी वायबल एसेट क्लास कॉल्ड कमोडिटीज. एंड कमोडिटीज तो क्या हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं, हम जो खा रहे हैं, पहन रहे हैं, जो जगह
पे बैठ रहे हैं, सब तो कमोडिटीज हैं. सो कमोडिटीज एक्चुअली शुड बी मोस्ट पॉपुलर. सो व्हाट डू यू थिंक कैन बी डन? लाइक यू सेड, अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है, और आप सीपीआई के माध्यम से, हम एक्सचेंज के माध्यम से तो कर ही रहे हैं. तो कमोडिटी मार्केट्स को और प्रोत्साहन करने के लिए, एक लास्ट माइल में हर इंसान से जोड़ने के लिए, कि कमोडिटीज तो हर इंसान से जुड़े हुए हैं, बट कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट्स उसके साथ कैसे जोड़ सकते हैं? आपका कोई उसमें व्यू हो कि और अवेयरनेस कैसे बढ़ाया जाए? देखिए ऋषि जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा. ये एक सेइंग है जो हम कहते हैं, डोंट पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट. तो उसका कहने का मतलब हमारी मार्केट के लिए ये है कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट का आपका कॉर्पस है, उसको आपको डाइवर्सिफाई करना है, डिफरेंट एसेट क्लासेस के अंदर करना है. वो हार्ड एसेट्स भी हो सकती हैं, फाइनेंशियल एसेट्स भी हो सकते हैं, या दूसरे एसेट्स भी हो सकते हैं, जैसे आपने बोला कमोडिटीज. तो ये ब्रॉडर ये क्लासिफिकेशन है. फाइनेंशियल मार्केट में इक्विटी मार्केट्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए. हार्ड एसेट्स के अंदर हार्ड इसमें प्रॉपर्टीज हो गई, प्रीशियस मेटल हो गए, जैसे आपने बोला है. थर्ड इज अगेन डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट. जैसे कमोडिटीज के अंदर आप कह रहे हैं म्यूचुअल फंड एक नया रूट आया है, लोग उसको कमोडिटीज मार्केट को उसके थ्रू ले सकते हैं. देखिए, मैं इसको इस कंटेक्स्ट में कहता हूं कि इंडिया, अभी हमने देखा है कि G20 देखा, और गवर्नमेंट की इंडिया की जो पोजीशनिंग है वो काफी बड़ी स्ट्रांग होती जा रही है पूरे वर्ल्ड सिनेरियो के अंदर, जियोपॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर. और हमारी जो ग्रोथ है 6.75% है, जो कि हम 3 ट्रिलियन इकोनॉमी में पहुंचे हुए हैं. 5 ट्रिलियन और 10 ट्रिलियन की बात हो रही है. आने वाले टाइम में हम थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट नेशन बनेंगे. ये सब कुछ सोचते हुए इंडिया के अंदर ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव्स बहुत हैं. तो हमारे यहाँ पर इन्वेस्टर को जरूर सोचना चाहिए कि ये अगर इतनी बड़ी ग्रोथ आने वाली है, उसको कैसे पार्टिसिपेट करें. तो एक स्टडी और आई है, उसके अंदर कहते हैं कि जितनी ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी या बड़ी इकोनॉमी बनेगी इंडिया, उसमें 40% कमोडिटीज का होगा. कमोडिटीज कंट्रीब्यूट करेंगे. उसके अंदर इकोसिस्टम हमारे को चाहिए, डेरिवेटिव्स भी उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे. तो अगर उनको इंडिया की प्रोग्रेस में पार्टिसिपेट करना है सारे जनता को, तो उसको एक कमोडिटी को भी एक बहुत जरूर ध्यान से देखना चाहिए. क्योंकि अगर वहां ग्रोथ होगी, अगर उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं करा. और ऋषि जी, आपको पता है हर एक एसेट की एक साइकिल होती है. जैसे हमने देखा कि प्रॉपर्टी चढ़ती है तो अचानक 2 साल के अंदर डबल हो जाती है. हमने गोल्ड के अंदर देखा, इतने साल लल रहा, फिर अचानक एक बारी में ही हमने 70-80% की ग्रोथ देख ली. तो अगर वो कंटिन्यूअसली लॉन्ग टर्म किसी भी एसेट क्लास में कोई रहता है, कोई भी इन्वेस्टर रहता है, तो उसके अंदर वहां पर उसको गेन जरूर होती है. और मेरे को लगता है अगर लोग अपना डाइवर्सिफाई करेंगे ऑल एसेट क्लासेस के अंदर, उसके अंदर कमोडिटीज को भी लेकर आएंगे, तो उनको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है. कमोडिटी के अंदर जो सबसे आसान तरीका है इंडिविजुअल्स का पार्टिसिपेट करने का, वो तो ये है कि वो प्रीशियस मेटल के थ्रू आए, उसके अंदर पार्टिसिपेट करे. अदर देन डेरिवेटिव मार्केट, हमारे पास गोल्ड ETF है, गोल्ड के दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि अवेलेबल हैं स्टॉक एक्सचेंजेस के अंदर. इसके अलावा भी, जैसे गवर्नमेंट ने, सेबी ने अलाउ करा कि कमोडिटीज को म्यूचुअल फंड के थ्रू भी पार्टिसिपेट किया जा सकता है. तो कई म्यूचुअल फंड्स ऑफर कर रहे हैं जो कि डेरिवेटिव प्रोडक्ट को यूज करते हैं, और उससे वो फायदा उठा सकते हैं. बहुत बढ़िया बात कही आपने वदवा जी, और इसमें मैं एक दो पॉइंट आपके पकड़ के उसमें विस्तार करना चाहूंगा. जैसे आपने कहा कि हम एक 3 ट्रिलियन इकोनॉमी है और 5 ट्रिलियन की तरफ बहुत जल्दी बढ़ रहे हैं. तो इसमें क्या है कि मैंने ये देखा है अक्सर कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ आता है, इकोनॉमिक ग्रोथ आता है कमोडिटी के माध्यम से, और उसका इफेक्ट आता है इक्विटी मार्केट में. तो मतलब लीडिंग इंडिकेटर आ जाता है कमोडिटी, और लैगिंग इंडिकेटर आ जाता है इक्विटी मार्केट. तो जरूरी नहीं है इक्विटी मार्केट भी पहले एडवांस करता है, क्योंकि उसको पहले से ही समझ में आने लगता है. बट ओवरऑल कॉज एंड इफेक्ट की बात करें रादर देन लीडिंग एंड लैगिंग इंडिकेटर, तो कॉज कमोडिटी मार्केट ग्रोथ आता है एंड इफेक्ट स्टॉक मार्केट में आता है. तो अगर आपको ये समझ में आ जाए कि दोनों में जो इंटरलिंकेज है, तो आपका निवेश की जो यात्रा है वो और सुखदायी होगी. आप हर मार्केट में अच्छे से भाग ले पाएंगे. और कमोडिटी मार्केट्स में एक और अच्छी बात है जो मैं कहना चाहूंगा आपकी बात से लेके, कि जो सॉफ्ट एंड, आई मीन, जो फाइनेंशियल एंड हार्ड कमोडिटीज की बात कही आपने,
तो फिजिकल एसेट में भी आपको कमोडिटी मार्केट में मिल सकता है, फाइनेंशियलाइज भी मिल सकता है। जैसे कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट में आपको सोना डिलीवरी लेना हो या और कोई कमोडिटी लेनी हो, तो आप डीमैट में भी डिलीवरी ले सकते हैं और उसको फिजिकल भी उठा सकते हैं। सो यू हैव द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। अब मैं एक और बहुत अहम मुद्दे पे आऊंगा इसी चर्चे पे, कि भारत को अगर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है और आगे चल के फिर 10 ट्रिलियन बनाना है। देखिए, स्काई इज द लिमिट। इंडिया का डेकेड है, इंडिया का, मैं बोलूँ सेंचुरी इंडिया को बिलोंग करती है, ये तो मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो इसके लिए आपको क्या लगता है कि भारतीय कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट्स को स्ट्रेंथन करना कितना अनिवार्य है, और कितना इम्पोर्टेंट है कि जो कॉरपोरेट्स हैं, हेजर्स हैं, वो यहाँ आके पार्टिसिपेट करें बनिस्बत कि वो दूसरे फॉरेन एक्सचेंजेस में जाके पार्टिसिपेट करें। सो मेरा मेन मुद्दा पूछने का है कि ये जो प्राइस डिस्कवरी जो भारत में होनी चाहिए, प्राइस हेजिंग भारत में होनी चाहिए, उस पर आपके क्या व्यूज? ऋषि जी, हमारे को सबको दोनों को पता है कि जब ये एक्सचेंज बनाए गए तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि एफिशिएंट प्राइस डिस्कवरी एंड इसकी हेजिंग। जब हमने देखा है जब वॉलेटिलिटी होती है तब इन एक्सचेंजेस और इन जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इनका बहुत यूज होता है। और हमने एक और फिगर अभी शेयर करी है कि 40% ऑफ दिस 5 ट्रिलियन और 10 ट्रिलियन विल कम फ्रॉम द कमोडिटीज मार्केट। कोविड के बाद क्या हुआ, China+1 की पॉलिसी आई, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग में फोकस करने लगा, एसएमई को बहुत प्रोत्साहन दिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, पूरा वर्ल्ड हमारी तरफ देख रहा है मैन्युफैक्चरिंग की साइड में भी। तो जब ये सारी चीजें इंडिया को फोकस हो रही हैं, इंडिया में आने वाली ही हैं, तो यहाँ का जो प्रोड्यूसर है, एसएमईज हैं, अगर वो कमोडिटीज को डील करते हैं और अगर वो इस प्रोडक्ट को यूज नहीं करेंगे और वॉलेटिलिटी रहेगी, वॉलेटिलिटी तो मार्केट का अपना बिहेवियर होता है, हमेशा होती है, तो उनको, हमारे को दोनों को मिलकर, मीडिया को, सबको जाना है, उनको समझाना है कि ये प्रोडक्ट उन्हीं के लिए बनाए गए हैं। अगर वो यूज नहीं करेंगे, जो कि पूरा वर्ल्ड यूज करता है और करता रहा है पीछे, तो वो कहीं पर लॉस में जाएंगे। तो उनको हेज करना बहुत जरूरी है। हेजिंग को हमारे को कहीं ना कहीं मिलकर गवर्नमेंट को भी इन्फ्लुएंस करना है, बोलना है कि जो जो उनके बोरोअर्स हैं, बैंकिंग सिस्टम के अंदर बोरोअर हैं और उनका कमोडिटी में एक्सपोजर है, तो उनको वो कहीं ना कहीं बोलें कि वो हेज करें इन मार्केट्स में। और हेजिंग के लिए मैं ये कहूंगा कि हमारे को बाहर जाने की क्या जरूरत है। अगर हमारे यहाँ पर एक्सचेंजेस हैं, हमारे को सिर्फ इंश्योर ये करना है कि अगर जो कॉन्ट्रैक्ट या जो वो हेजिंग बाहर कर रहे हैं, वो बाहर क्यों कर रहे हैं, हम इंडिया की अपनी एक्सचेंजेस में क्यों नहीं ला सकते। जैसे हम बार बार बोलते हैं मेक इन इंडिया, इंडिया में हम वो कर रहे हैं, प्रोपोगेट कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी कर रही है, तो वैसे ट्रेड इन इंडिया को भी हमारे को प्रोपोगेट करना है, एक्सचेंजेस को वो बनाना है, उतना सक्षम बनाना है, लिक्विडिटी ऐसी लानी है कि सारे लोग जो हेज करना चाहें वो इंडिया में हेज करें और प्राइस डिस्कवरी यहीं पर हो इंडिया के अंदर। एकदम सही कहा कि सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग से नहीं होता है, उसका दाम भी हम तय करने की क्षमता रखें। वी हैव द प्राइसिंग पावर एंड वी हैव द एबिलिटी टू मैनेज द ट्रेड इन इंडिया। दैट इज हाउ द मेक इन इंडिया विल बिकम डबली सक्सेसफुल। Well said, Vadvaji. Now, that is one aspect. See, in commodity markets, as I feel, the number and range of participants is much wider than you have in, say, other markets, because वहां पे normally investors ही रहते हैं, चाहे institutional चाहे retail। स्पेकुलेटर्स तो रहते ही हैं हर मार्केट में, बट मोटा मोटी इट इज फ्रॉम द इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग कम्युनिटी। बट कमोडिटी मार्केट्स में एक यूनिक एस्पेक्ट है कि यहाँ किसान भी है, हेजर भी है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, एक्सपोर्टर, इंपोर्टर, हेजर के अंदर सब आते हैं, आड़तिया जो भी है वो सब आ जाते हैं, निवेशक भी है, स्पेकुलेटर भी है, ट्रेडर भी है, सब हैं। सो अपने एक एस्पेक्ट टच किया कि अपने हेजर की बात की। अब आते हैं किसानों पे, क्योंकि आज भारत में हम जो भी खा रहे हैं, हम ऋणी तो किसान के ही हैं कि वो हमारे लिए अन्न उपजा रहा है। सो फॉर द फार्मर्स, कमोडिटी मार्केट एक प्राइस सिग्नल देता है। किसान जब बोता है अपना क्रॉप, तो उसको 3 महीने बाद का प्राइस दिखता है, उसको पता है कि मेरा कॉस्ट एक्स है, 3 महीने का बाद का कॉस्ट अगर सपोज एक्स प्लस 30% है या 20% है, तो वो जानता है कि मैं लॉक कर सकता हूँ। एक और मुद्दा आता है एमएसपी का, कि उसको कमोडिटी मार्केट से सब्सटीट्यूट करें, तो इस पे आपकी क्या व्यूज हैं? देखिए, जब 2002-3 के अंदर जो एक्सचेंजेस बनाए थे, तब ये था कि हम आने वाले टाइम में अपने फ्यूचर्स डेरिवेटिव मार्केट को स्पॉट मार्केट से लिंक करेंगे
और जब वो लिंक हो जाएगा तो प्राइस डिस्कवरी वहां पर होगी, जो कि डिसएडवांटेज होगी किसानों पे भी, वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट्स के लिए भी, हेजर्स के लिए भी, और फाइनेंशियल प्लेयर्स के लिए। अब हुआ क्या कि पूरे वर्ल्ड के अंदर पहले स्पॉट मार्केट होती है, उसके अराउंड डेरिवेटिव मार्केट को डेवलप करते हैं। हमने क्या करा, ऑर्गेनाइज्ड वे में पहले डेरिवेटिव मार्केट बनाई, और हम लगातार कोशिश कर रहे हैं स्पॉट मार्केट को इससे लिंक करने की। लेकिन डायरेक्शन ठीक है, क्योंकि इनको लिंक करना बहुत जरूरी है। रहा बात इसको, इस मार्केट को हम कई तरह से यूज करते हैं, जैसे आपने लास्ट में बोला एमएसपी। गवर्नमेंट इसको बहुत अच्छी तरह से यूज कर सकती है, अगर हमारी ऑप्शन मार्केट जो कि कमोडिटीज के अंदर आ जाए या एग्री कमोडिटीज के अंदर आ जाए, तो गवर्नमेंट एमएसपी देती है, वहां पर सपोर्ट प्राइस देती है फार्मर्स को। अगर हम ऑप्शंस के अंदर इसको यूज करें, ऑप्शंस अगर हमारे ऊपर लिक्विड हो जाती हैं, तो गवर्नमेंट इसको बहुत अच्छी तरह से यूज करती है एज ए रिप्लेसमेंट ऑफ एमएसपी। अगर वो पुट ऑप्शन दे देती है खरीद के किसान को या एफपीओस को, जो कि उसके माध्यम से आएंगे, तो उनके लिए एक रेट सेट हो गया। अगर उससे नीचे है वो रेट आता है, तो देर आर काउंटर पार्टीज हु विल टेक द रिस्क बेसिकली। ये यही मार्केट का बहुत ज्यादा सुंदरता है कि यहाँ पर जो रिस्क होता है वो डिवाइड हो जाता है नंबर ऑफ प्लेयर्स के अंदर। फाइनेंशियल प्लेयर्स हैं और बाकी जो प्रोड्यूसर हैं उसके अंदर, या कंज्यूमर हैं, वो अपना प्राइस को जो है डाइवर्ट हो जाता है, जो कि इंश्योरेंस के अंदर होता है। एक कोई सफर करता है, उसको बियर करता है पूरा इकोसिस्टम। तो यही फिलॉसफी है इसके अंदर, मार्केट के अंदर भी, हेजिंग की भी। तो इसको बहुत अच्छी तरह से यूज किया जा सकता है, मेरा मानना है उसके अंदर। रही बात जो डिफरेंट पार्टिसिपेंट हैं, जैसे मैंने कहा कि फार्मर्स हैं, फार्मर्स मेरे को लगता है इस मार्केट में डायरेक्टली प्राइस को देखने के लिए आएंगे, बट उनका जो रियल यूज है वो एफपीओ के थ्रू होगा। जो जरूर। फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन आऊंगी, वो ऑर्गेनाइज्ड वे में आएंगी, उनको बताएंगी कि आपका जो रेट्स हैं आपको फ्यूचर में इतने मिलेंगे, या उसके अंदर आप इतने में सेल कर सकते हो फ्यूचर डेट पे। तो एफपीओज विल बी ए कंड्यूट फॉर फार्मर्स, मेरा मानना है। आगे आने वाले में डायनेमिक वर्ड है, हमारे हाथों में स्मार्टफोन्स हैं, सबके हाथों में, मेरे हाथ में भी है, फार्मर के हाथ में भी है। तो वो दिन दूर नहीं कि जो कि फार्मर्स भी अपने आप अपने स्मार्टफोन को लेकर उसके अंदर अपने आप को हेज कर रहा होगा, या अपने प्रोड्यूस को बेच रहा होगा इस मार्केट के थ्रू। तो ये आने वाले टाइम में बिल्कुल पॉसिबल है। रही बात वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट्स की, आप और हम प्रोग्राम करते रहते हैं सबके लिए, इन सबके लिए, कि इसका यूज केस कई जगह है। इनपुट, एज ए इन्वेंट्री मैनेजमेंट, एज ए सेलिंग पॉइंट। तो देर आर मेनी यूजेस फॉर वैल्यू पार्टिसिपेंट, और हमारे को ये बताना चाहिए। रही बात बहुत सारे लोग, क्योंकि स्कोप इतना बड़ा है इस मार्केट का, तो हमारे को एफर्ट यही करना चाहिए फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए या अपनी मार्केट के इंक्लूजन के लिए, कि हम इनको बार बार बताते रहें। और ये जैसे वीक आते हैं, ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, एक्सचेंज के लिए भी अपॉर्चुनिटी है कि हम ग्राउंड पे जाके मंडियों में जाएं, एफपीओस के पास जाएं, या जो दूसरे यूजर हैं उनके पास जाएं, उनको एजुकेट करें। जरूर, जैसा आपने कहा, एक एग्जांपल देता हूँ हेजिंग का, कि आज एक ज्वेलर है, उसका उसका बिजनेस क्या है कि सोना खरीदना, कच्चा सोना खरीदना, उसको ज्वेलरी में कन्वर्ट करना और बेचना, और मेकिंग चार्ज है वो ही उसका बिजनेस प्रॉफिट है। अब सपोज वो उसने सोना खरीद लिया बहुत सारा और ज्वेलरी बना लिया, और सोने के दाम गिर जाते हैं तो उसको बहुत लॉस हो जाएगा। और दूसरी तरफ अगर सोने के दाम बढ़ गए तो उसको बहुत बड़ा गेन भी हो सकता है। बट वो कोई भी बिजनेस में ऐसा अनसर्टेनिटी चाहता नहीं है। तो इसीलिए जो हेजिंग के माध्यम से जब वो सोना खरीदे कच्चा, तो वो एक्सचेंज पर बेच दे, और जब ज्वेलरी बिके तो अपना सोना का कॉन्ट्रैक्ट वापस ले ले। तो उसका जो मेकिंग चार्ज या उसका जो कन्वर्जन कॉस्ट है, 10-20% जो भी उसका जो बिजनेस मार्जिन है, वो उसको मिल जाए, तो उसको एक स्टेबिलिटी मिल जाती है अपने बिजनेस में। तो ये एक बहुत बड़ा माध्यम है कमोडिटी एक्सचेंजेस हेजिंग के लिए, जो वधवा जी ने भी अभी बताया। अब आते हैं जो बहुत एक और बहुत इंपॉर्टेंट अंग है कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट के, जो रिटेल निवेशक हैं। आज रिटेल निवेशक, हो सकता है कुछ लोग सोचते हैं कि कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट है, मैं तो निवेशक हूँ, मैं ट्रेडर नहीं हूँ। ट्रेडर तो अपने आप आ जाते हैं, कर लेते हैं। लेकिन जो निवेशक है उसके लिए भी कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट में बहुत कुछ है, जिसपे अपने थोड़ी चर्चा करते हैं। कि आज सपोज आप निवेशक हैं, सोना तो देखिए हर घर में प्रिय है, और सबको, भारतीयों को तो बहुत विशेषतर प्रिय है। हम 600 800 900 टन साल का इंपोर्ट करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितना सोना प्रिय है लोगों को। चांदी भी उसी तरह प्रिय है, हर घर में आपको सोना और चांदी, साधारण से साधारण घर में भी थोड़ा बहुत सोना चांदी तो मिल ही जाएगा। तो ये जो
कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट के माध्यम से जो सोना और चांदी घर घर में पहुंच सके, सोना खरीदने का एक, जैसे कहते हैं, एक नया तरीका है कि आज 1 किलो से लेके 1 ग्राम तक सारे कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल हैं, फिजिकल भी हैं, डीमैट में भी हैं। तो इस पे आप थोड़ा सा अ, विस्तार करेंगे कि आदमी कैसे इसका लाभ उठा सके, रिटेल निवेशक। देखिए, हमारे को मार्केट को सक्सेसफुल बनाना है या एक्सचेंजेस को सक्सेसफुल बनाना है, तो इंडिया की ताकत क्या है? 140 करोड़ की जनता। हमने पीछे देखा कि हम इतने सालों से बोलते आ रहे थे कि हमारी किसी भी डेवलपिंग मार्केट के अंदर जो इन्वेस्टर होता है, जो निवेशक होता है, वो 15 से 20% होता है परसेंटेज टोटल पॉपुलेशन का। और डेवलप्ड कंट्री में ये फिगर चली जाती है 30 से 40%। एक और फिगर मैं आपको बोलूंगा कि एक पीडब्ल्यूसी की स्टडी है, उन्होंने कहा कि 2.5 ट्रिलियन और 3 ट्रिलियन के अंदर हम 20 लाख करोड़ रुपया हाउस होल्ड सेविंग होती है हमारे साल में एनुअली। तो बहुत बड़ी फिगर है। और सिंपल मैथमेटिक्स कहता है जब हम 5 ट्रिलियन हो जाएंगे तो 40 लाख करोड़ रुपया हम हर साल सेव करेंगे। तो ये सेविंग कहाँ जाए? ये डेफिनेटली हमारे ब्लड के अंदर है सेविंग। ये हमने देखा, ये फिगर ही बताती हैं कि सेविंग हमारे ब्लड में है। हमारे को इंश्योर करना है कि ये सेविंग चैनलाइज हो इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि हमारी ग्रोथ जो है इंडिया की, वो हमारे को प्रॉम्प्ट करेगी, बोलेगी कि इन्वेस्ट करो, इसके अंदर ग्रोथ करो। जैसे आपने कहा गोल्ड की बात करी, तो अगेन मैं बोलूंगा कि गोल्ड भी हमारे, इट इज इन आवर ब्लड ओनली। हर एक ओकेजन में, दिवाली हो, मैरिजेस पे, हमारे हाउस होल्ड लेडीज जो हैं, और अक्षय तृतीया आती है, उसके अंदर वो इन्वेस्ट करते हैं गोल्ड के अंदर। तो ये हमारा, इट इज इन आवर ब्लड टू इन्वेस्ट इन द गोल्ड एंड सिल्वर ऑल अलोंग। इतने सालों से, कई हजार साल से हम इन्वेस्ट करते आ रहे हैं। आपको एक स्मॉल स्टोरी बताता हूँ। अगस्त के अंदर हमारे सीएफओ थे, तो उनकी मैरिज, बेटी की मैरिज के लिए मैं चिदम्बरम गया। तमिलनाडु का एक छोटा सा विलेज है, स्टेट है। तो मैं जब सुबह मैरिज पे पहुंचा, उनके यहाँ अर्ली मैरिज होती है सुबह 4 बजे, तो मैं देखकर हैरान हो गया कि हर एक लेडी ने कम से कम 2-2 किलो का सोना डाला हुआ था। 1.5 किलो, 2 किलो, 3 किलो सोना डाला हुआ था। मैंने कहा छोटी सी जगह, कहता है ये तो हमारा यहाँ का रिवाज है कि हम जैसे ही बेटी होती है या कोई होता है तो हम गोल्ड खरीदना शुरू करते हैं, और ये हमारा नेचुरल इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस है। तो हमारी फैमिलीज के अंदर हमने देखा है कि हम इन्वेस्ट करते आ रहे हैं, लेकिन ज्वेलरी की शेप में करते आ रहे हैं, बट गोल्ड इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और एक मैंने आर्टिकल लिखा था बहुत साल पहले, जिसमें लिखा था कि इंडियन हाउस होल्ड विल बी वेल्थियर एंड दे विल क्रिएट वेल्थ आउट ऑफ गोल्ड, बिकॉज वैल्यू इतनी बढ़ जाएगी गोल्ड की वैल्यू। आप समझिए 3 किलो जिसने गोल्ड डाला हुआ है, मतलब 2 करोड़ रुपए का गोल्ड डाल के घूम रहा है वो। तो वो ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग है बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड। अब इसमें डेरिवेटिव मार्केट्स में आपने छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स लेकर आए हैं, उसकी आप डिलीवरी पहुंचाते हैं। गोल्ड की डिलीवरी भी आपने अनेबल कर दी है एक्सचेंजेस के थ्रू। उसको समझाने की जरूरत है ऋषि जी, मेरे को लगता है कि इस एक्सचेंजेस से वो